This is our webinar on placement, and main purpose of this webinar is to give you how you can get job in a better company, how can you grow yourself in your future. Also, there are you need some motivation from the person which will help you to prompt your career. Okay. So today we have invited Mr. Dheeraj Jaru and Mr. Ramesh Rathod. Mr. Dheeraj Jaru is from Parekh Group of Companies and Mr. Ramesh Rathod is from Arvind Group of Companies. Today they will share their experience with you and they will give you some important guidance which will helpful to you, and you can build your career on their experience basis, because we don't have enough time to do all the things personally. So in life we can get the experience of other person and we can make our own with them. Okay. So we are welcoming Mr. Dheeraj Jaru and Mr. Ramesh Rathod. So please, Mr. Dheeraj Jaru, share your experience and your ideas. Hello everyone, welcome to this webinar for career guidance, and why there is career is required, which career is required. Okay, तो हम पहले स्टार्ट करने से पहले हमारा रमेश सर जो है is the senior most person in HR field. So I request to Ramesh Rathod sir, please take some moment, then we'll get back. Thank you, Dheeraj sir. Thank you, Joshi sir. First of all, I would like to thank you for inviting us as a career guidance advisor or as a faculty point of view in the branch you are running with. Before going to start our career guidelines, some points, let me introduce first myself. Myself, Ramesh Rathod. Total 10 years of experience is having with me. Prior to Arvind, I was joined Adani Group, and there I have served around 7 years. Right now, I am with Arvind, working since last 2.5 years. So, Joshi sir, can you please browse all the PPTs? Sure. Yeah. So let us directly goes to the point why the career point is required, why one has to select and why one has to choose consciously all his one-on-one point while going to the any job or while choosing any company likewise, because first step or the ongoing step will decide over your entire career, your entire life. So choosing a career at that starting point is very important. So whenever we are choosing any kind of career, we must have to look out all the available possibility, all the available opportunities in the market, as well as we possess what we think of, what parents think of, what society think of, as well as what society what the industrial requirement is there. All this point we just need to go through, and then after only we should have to select our career, so that after serving 5 years, 10 years, 15 years, we should not be in the dilemma that we have selected the wrong career. So that is the basic purpose we have selected this slides for you. So next slide please. Yeah. First of all, when one has to choose their own career, they have to make a SWOT analysis. You might all or one of you have gone through the SWOT analysis name, that is a strength, weakness, opportunity or threats. So that is the basic purpose of individual as well as the market analysis. So what are the strengths? If I think of my career, what are strengths I belongs to, like a public speaking, like a good English speaking, like I am good in a counseling matter, I am good in the talking with the other people, if whether I am a technically sound with the IT or not, whether I am a technically sound with the engineering technicality or not. So these are the strengths we need to check, as well as we also need to check the weakness we possess.
Likewise, some of the introvert personalities are there, extrovert personalities are there. If somebody is an introvert personality who is not able to talk with the person available in front of the him or her, as well as if he is not able to speak rightly on the stage, then it would be a negative part for him if he select that kind of career. Likewise, TV news channel reporter, he cannot speak in front of camera if he cannot speak fluently with the people. He cannot speak if he is having a dilemma, or he is having in doubt whether I will be able to speak with the public rightly or not. Then if he is select the career in the like HR, ठीक है, HR में लोग पब्लिक से बात ही करते हैं सिर्फ, ठीक है, अगर वो उसको वीकनेस का अगर मालूम है तो he should not select that particular field so that will restrain to his own career. So ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने अपना चेक कर लिया कि मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अकॉर्डिंगली मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, दैट ऑल्सो नीड टू बी थिंक ऑफ. लाइकवाइज मैंने इंजीनियरिंग फील्ड तो सिलेक्ट किया, मगर अभी मैं इसमें मैकेनिकल करूं या फिर ऑटोमोबाइल करूं, इलेक्ट्रिकल करूं, सिविल करूं, क्या करूं, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं टेक्निकली फिजिक्स में मैं अच्छा हूँ, ठीक है, साइंस एंड मैथ्स इज गुड, मगर अभी और क्या, नेक्स्ट क्या, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है मार्केट में, दैट ऑल्सो नीड टू बी लुक्ड परफेक्टली. तो ही आप अपना कैरियर काउंसलिंग जो है प्रॉपरली कर पाएंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ही इटसेल्फ, ठीक है. सिमिलरली थ्रेड्स ऑफ दैट, लाइकवाइज हम देखते हैं कि कैमराज हैं, ठीक है, कैमराज अगर मैंने नोकिया फोन की हम एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल हम कई बार लेते हैं, ठीक है, कि अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो वो मार्केट में कहीं पे खो जाएंगे. ऐसे ही हम कोई ऐसा कैरियर सिलेक्ट करते हैं जिसमें आज से 10 साल बाद कोई कैरियर मिलने वाला ही नहीं है, या फिर वो उसके खतरे में हो सकता है. सो इन दैट पॉइंट all the SWOT analysis, this is called the SWOT analysis, we just need to look at everything. तो ही आप प्रॉपरली अपना स्टार्टअप दे पाएंगे, एज वेल एज आप उसमें करियर ग्रो प्रॉपरली कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं और भी बोलूं कि इसमें एक स्टैंडर्ड कंपनी ले लेते हैं. अगर आप अपना स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, स्टार्टअप अगर कहीं किसी के थिंक आता है कि मुझे ये बिजनेस करता है, तो उसमें भी ये SWOT एनालिसिस काम आता है कि वो बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, उस बिजनेस का वीकनेस क्या है, इधर मार्केट में इसकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और उसका थ्रेट्स क्या है. अगर मान लीजिए कि मैंने एक नया स्टार्टअप किया जिसमें मुझे देखना है कि ऑनलाइन सेलिंग है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, लाइकवाइज, पर ये थ्रेट्स है पूरा कि मतलब मार्केट में इतने जायंट्स अवेलेबल है, जियो है अवेलेबल, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वेदर माय बिजनेस विल गेट सस्टेन्ड और नॉट, उसमें वो प्रॉपरली कर पाएगा कि नहीं पाएगा. वो इंडिविजुअली एज वेल एज बिजनेस का, ये दोनों का SWOT एनालिसिस आप कर पाएंगे, then and then only you will be able to make a proper step up into the career line. That is that. Joshi sir, next please. Yeah. See, कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग क्यों करना है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, मैं एज अ पेरेंट्स मैं अपना सोच रहा हूँ कि बच्चे के लिए क्या करियर आगे डेवलपमेंट कर पाऊंगा, तो क्या पढ़ाऊं सो दैट कि हिज करियर, हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड totally properly. Am I audible? Yes, yes. Yeah. So कई बार क्या होता है कि हम सोशल प्रेशर में आके अपना करियर चूज करते हैं. लाइकवाइज पेरेंट्स ने कहा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड किस लाइन में जा रहा है, उस लाइन में मैं घुस जाता हूँ, so that we will be stay together. But out of some times what is happening कि वो जो है वो हमने किसी के प्रेशर में आके या किसी के सोशल प्रेशर में आके वो जो हमने सिलेक्ट किया होता है वो ब्रांचेस या जो भी है, वो फिर आगे जाके नल एंड वॉइड जैसा ही हो जाता है, बोरिंग हो जाता है. एवरीवन हैज लुक एट द 3 इडियट्स, ठीक है, वो काम करो जिसमें मजा आता है, फिर ऐसा ना हो कि वो काम ना रहे, बोरिंग ही पूरा बन जाता है, ठीक है. सो सम हैज टू लुक एट कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बाद उसकी क्यूरियोसिटी उसमें है कि नहीं, एक्साइटमेंट है कि नहीं, वो उसका पूरा उसको जैसे मैंने सेल्स का ले लिया, मैंने सेल्स का कैरियर मैंने सिलेक्ट कर लिया, मगर मुझे ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है.
So it should not be like that कि कोई और के प्रेशर में आके या किसी और की सक्सेस देख के. फॉर एग्जांपल मेरे चाचा का लड़का देख लिया कि मैंने इंजीनियर कर लिया एंड नाउ ही इज इन इंजीनियर एट दी रिलायंस एंड ही इज अर्निंग 60,000 पर मंथ. कई बार ऐसा भी हो जाता है सिलेक्शन की सोशल प्रेशर जो पेरेंट्स है, फ्रेंड है, कोई और गाइडलाइंस है, उसके बेस पे आके हम अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं और किसी और को देख के या किसी और के प्रेशर में आके वी आर सिलेक्टिंग अवर कैरियर्स. सो दैट शुड नॉट बी हैपन. सिमिलरली अगर आज सिलेक्ट कर भी लिया है, अगर आज हम आ भी गए हैं, तो उसमें हम हमारा एक्साइटमेंट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट टू हैव ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कर लिया, ठीक है, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं करना था. तो व्हाट कैन बी द अपॉर्चुनिटी ओवर देयर. सो मैं MBA करूंगा उसके साथ. सो मेरे ड्यूअल डिग्री हो, टेक्नो कॉमर्शियल उसको बोलते हैं, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो एडेड एडवांटेज बन जाएगा. फिर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है मेरा एडेड एडवांटेज बन जाएगा अगर मैं MBA फाइनेंस में कर लेता हूँ. मेरा फायर एंड सेफ्टी में अगर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फायर एंड सेफ्टी, दैट विल बी द एडेड एडवांटेज. सो कैसे हम इंजीनियरिंग का एज अ कैरियर सिलेक्ट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपने ऑलरेडी यू आर इंजीनियर नाउ, ठीक है, और उसमें भी आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं एज पर योर वीकनेस, एज पर योर स्ट्रेंथ, दैट इज ऑल अप टू यू. प्लीज सर नेक्स्ट. सर ये जो आपने बताया इट इज रियली गुड थिंग कि करियर जो हम चूज कर रहे हैं किसी के प्रेशर में चूज नहीं करना है. और सेकेंडरी की जो आपने स्ट्रेंथ बताई, अगर सेल्स पर्सन है, अगर वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता देन हाउ कैन ही सस्टेन हिज जॉब. एग्जैक्टली सेड. यस ओके सर प्लीज गो अहेड. सो वैसे देखा जाए तो जोशी सर ने सही एग्जांपल सही टाइम पे दे देते हैं, वो सही देख लिया है. ऐसे ही ये 3 C's ऑफ कैरियर सक्सेस, ये कई बार हम लोग गूगल करते हैं तो ये सब पढ़ने को मिल ही जाता है, मगर वन हैज हु इज ओन एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री हैज द डिफरेंट एक्सपोजर. पर प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा अलग ही होता है. जो सब लोग थियोरेटिकल में पढ़ते हैं या फिर सिर्फ जो बोलने वाले रहते हैं, एक बार हमें क्लास में पढ़ाते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट. एक बार आप किसी भी कैरियर को चूज कर लेते हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, व्हाटसोएवर, उसमें अगर उसके बाद में आपको सक्सेस होना है तो 3 things आर रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस इन द कैरियर. क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी एंड करेज. क्यूरियोसिटी इज मस्ट इन एवरीवेयर. सी फर्स्ट, खास करके जब इनिशियल स्टेज हो आपके कैरियर का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो हर एक स्टेप पे आपका रहना चाहिए. ऐसा क्यों हुआ है? Until and unless you will get into the depth of the everything, you will not be able to understand entire process, entire engineering. ऐसे ही है कि अगर कोई भी चीज डेवलप करनी है, इंजीनियरिंग में डेवलप R&D में काफी सारे रहते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स आर रहते हैं, वो ईच एंड एवरी थिंग्स को उनको अंडरस्टैंड, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, देन एंड दोनों उसकी परमानेंट सॉल्यूशन दे पाएंगे, R&D में कुछ नया सक्सेसफुल कैरियर बने. ऐसे ही क्लैरिटी, हर एक चीज में क्लैरिटी. कई बार मेरे ही बॉस कई बार पूछते थे, ये तो क्वेश्चन बहुत करता है. क्वेश्चन आप पूछेंगे नहीं देन ओनली तो आप आगे सक्सेस हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है. दैट इज अ मैंडेटरी थिंग इन योर कैरियर कि आप हर एक चीज में क्लैरिटी लीजिए, हर एक चीज में क्यूरियोसिटी रखिए. और कई बार क्या होता है, करेज की बात करें तो स्टूडेंट्स की हम बात करें, क्लास में 60 लोग हैं मगर क्वेश्चन करने वाले 5 ही लोग होते हैं. क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है मगर दे आर नॉट एबल टू आस्क, वो पूछते नहीं है, वो हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं. सो यू हैव टू गेट दैट करेज कि आपको वो पूछना है, आपको वो जानना है, आपको वो रिस्क लेना है. थोड़े टाइम लगता है, डर जैसा लगता है, थोड़े टाइम लगेगा भी सही. लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये इतना सिली क्वेश्चन पूछ लूंगा, बॉस क्या सोचेंगे, वो बोल रहे हैं साला मैं कैंपस इंटरव्यू से करके आया हूँ और इसको इतना छोटा सा बात मालूम नहीं है. लेट हिम थिंक यू आर स्टूपिड, लेट हिम थिंक इट इज द स्टूपिड क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपको वो क्लैरिटी लेनी चाहिए. तो वो करेज करके, वो क्यूरियोसिटी रख के आपको क्वेश्चन पूछ ही लेना है. वो जैसे वो 3 Idiots में वो जो करता ही है, वो जो इंजीनियर है आमिर खान, सिमिलरली हर एक चीज में पूछते ही रहने का, करते ही रहने का, दैट इज द की टू द सक्सेस, ठीक है. अभी जब भी आप कैरियर प्लान करते हैं तो क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए.
योर पैशन, वो जो मैंने सबसे पहले पूछा था कि आपका स्वॉट एनालिसिस आप खुद करोगे तो यू विल बी एबल टू नो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बेस पे आपका पैशन क्या है। आपने पिछले 4-5 सालों में ऐसा तो क्या कंटिन्यूअसली करते आ रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी और ने बोला है, मगर आप अपने हिसाब से क्या करते आ रहे हो, ठीक है, दैट इज योर पैशन। आपको लगता है कि मैं कंटिन्यूअसली जो है नए नए वीडियो बनाते रहा हूँ, ठीक है, सो दैट इज योर क्रिएटिविटी, ठीक है, दैट इज योर थिंग कि आपको उसमें मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, दैट इज योर पैशन। सिमिलर टू आपका ऐसी क्या क्या एक्टिविटी है जो आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो। मॉर्निंग में डेली उठ के हम देखते हैं कि 5 बजे लोग क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, आप स्टूडेंट्स में से काफी लोग चले जाते होंगे मॉर्निंग में, लोग उठते भी नहीं है उससे पहले आप क्रिकेट खेल, दैट इज योर पैशन, ठीक है, दैट इज योर डिसिप्लिन। उस पैशन को, उस वैल्यूज को आपको अंडरस्टैंड करना है। ऐसे ही आपको स्किल्स क्या क्या, आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है वो देखना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मगर काफी लोग होते हैं जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं रहते हैं, तो दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ ठीक है मैं 5 साल में अपनी जॉब करूंगा, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस, ठीक है, सो 5 इयर्स में मैं अपना थोड़ा कुछ फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो जाता हूँ, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। सो दैट इज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो आपके डिसाइड करना है आप लोगों को अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से गोल बनाना ही बनाना है। देखिए कई बार क्या होता है कि आई डू हैव अ नॉलेज, आई डू हैव अ स्किल्स, मगर मेरा गोल नहीं होगा ना तो वो सब नल एंड वॉइड ही है। सो आपके गोल होना मैंडेटरी है किसी भी कैरियर में ग्रोथ करने से, मतलब ओन एंटरप्रेन्योरशिप करें या फिर कंपनी में जाए, ठीक है। हर एक का एक डिसाइडेड गोल रहता है कि मैं 5 इयर्स तक ये करूंगा, उसके 5 इयर्स के बाद ये करूंगा, उसके 5 इयर्स के बाद ये करूंगा, दैट इज दैट। और लर्निंग एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे तो आप ज्यादा बेटर रहेंगे। इसीलिए कभी भी आप बोलते हैं ना जेवी संगत तेवी रंगत बोलते हैं कि, है ना, वो अपना फ्रेंड जोन जो है, फ्रेंड सर्कल जो है वो ऐसा बनाइए कि जो आपको पैशनेटली हेल्प करे। स्टार्टअप देखिए ये काफी हॉट पॉइंट रहता है, ये जो है किसी भी डिस्कशन में स्टार्टअप करना है, गेटिंग हायर्ड करना है। कई लोग क्या करते हैं कि बिजनेस का ही सिर्फ सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली। सो अगेन वो स्वॉट एनालिसिस जो पहले था उसी को सोचिए कि आपका जो खुद का बिजनेस का जो आइडिया है वो कितना सस्टेन मार्केट में कर पाएगा, कितनी अपॉर्चुनिटी है उसमें, क्या थ्रेट्स है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर आप कहीं पे कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो खुद के बारे में ज्यादा जान के जाइए, ठीक है। जितना पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जितना गूगल कर सकते हो करना ही करना है, दैट विल बी द बेसिक रिक्वायरमेंट एनीवेयर दे विल आस्क। सबसे ज्यादा क्या होगा कि दे विल आस्क फॉर द प्रेजेंटेशन, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आप कितना प्रेजेंट दे सकते हो अपने स्किल्स के बारे में, दैट आर ऑल्सो एज इक्वल टू इम्पोर्टेंट। एनर्जी उतना ही बनाए रखिएगा जब भी कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाए, कोई कैंपस में आए, कहीं पे कोई भी बुलाए, तो आप जितना एनर्जेटिकली बात करोगे, जितना फ्लुएंटली, जितना अच्छे से बात करोगे, उतना ही अच्छा इंप्रेशन बना पाओगे। ओनली मार्क्स विल नॉट वर्क, सिर्फ मार्क्स अगर आप अच्छे स्कोर कर भी लेते हैं दैट विल नॉट ओनली वर्क, कि उसके साथ में आपको ये जो बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू, जितना सॉफ्ट स्किल्स जो है वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर। Sure, sir. Yeah. क्या मांगा जाता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप है, क्या मांगता है? वो आइडिया को मांगता है, आपकी मेहनत को देखता है, वेदर यू आर कैपेबल ऑफ। कई बार क्या होता है नॉलेज नहीं होती है मगर एटीट्यूड सही लगता है ना, तो भी लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या डिफरेंस कर सकते हो, क्या डिफरेंस अपना प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट। हर एक छोटी छोटी चीज में इंजीनियरिंग तो है ही है। सो आपका पैशन बनाओगे आप एक बार, आप डेवलपमेंट हर एक चीज में कर सकते हो। आज हम छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हर एक इंजीनियरिंग ही इंजीनियरिंग है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। डिजाइन स्पोर्ट्स क्लोथिंग, find the new ways to preserve food, make the latest skin care products. These are the normal ideas. ऐसा नहीं है कि मतलब
ये कोई नई चीज है ऐसा भी नहीं है, मार्केट में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, मगर आप क्या नया कर सकते हो, कितना इंजीनियरिंग अपना यूज करके कितना कॉस्ट इफेक्टिव, कितना यूजेबल, कितना मार्केट में अच्छा लगे, कैसी सर्विस दे सके, ऐसा बना सकते हो। सो उसके ऊपर है, इंजीनियरिंग इज एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू यूटिलाइज दैट प्रॉपरली, और सेम वे में आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप में यूज करो या फिर अपने इंडस्ट्री में जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे करो। सो दैट इज द वैल्यू यू हैव। सो Dheeraj sir, would you like to tell anything? Yes. Here is you see the chart of the where I am. आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ तो जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, गवर्नमेंट और प्राइवेट, यू चूज व्हाट यू, मतलब व्हाट इज योर पैशन, व्हाई यू गो टू safe or secure place, or you want to grow with private and take more and more responsibility and learn more and more skill about development of yourself as well as company, and definitely you will get money against your job. Okay, then आप अपना हायर एजुकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि सर रमेश सर ने बताया कि आपको आगे क्या करना है, किस तरह से, बराबर। और मीनवाइल आप कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आप डिस्टेंस एजुकेशन अभी जो है कि जैसे कि अभी आफ्टर कोविड-19 हम डिस्टेंस लर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर काफी जगह पे कर रही है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अभी कोई यूपी की एक गर्ल थी जो उसको 5 करोड़ रुपीस फॉर एजुकेशन स्कॉलरशिप provided by government of India, and she was educating at America, ठीक है ना। तो this is the very good initiative by government also. Okay, please next. Then see, opportunities is many. Okay, you have to choose where I am stand or where I go, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट भी R&D डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो रहा है, और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से काफी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन होने वाला है वो आपका डिफेंस में होने वाला है। सी, अवर डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी अनाउंस दैट के आत्मनिर्भर डिफेंस कल्चर। ओके, तो आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट में काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा ये मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट में काफी रिटायरमेंट एजेस हो गई है काफी एम्प्लॉइज की, तो आप भी आने वाले दिनों में काफी ओपनिंग्स आएगी। और एक दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैज बीन मतलब फाउंडेड, ठीक है। तो जो आईबीपी बैंकिंग एग्जाम थी, डीआरडीओ की एग्जाम थी, एसएससी की एग्जाम थी, काफी एग्जाम जो है वो सेंट्रलाइज किया जा रहा है। तो आपको एक मेन एग्जाम देनी है, उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट के लिए है वो आपको एप्लीकेशन देना है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में बैठा है कुछ काम बिना हमको एंजॉय करना है, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में प्राइवेट से ज्यादा गवर्नमेंट में काफी इनिशिएटिव लिया जाएगा, और प्राइवेट एज कंपेरेटिव टू गवर्नमेंट प्राइवेट भी सेम फॉलो करती है कि वहां पे R&D डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज तो है ही, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लीज। सी, ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो स्मॉल टिप्स है, मैंने और रमेश सर ने काफी एनालिसिस, काफी लर्निंग के बाद काफी मतलब सोच समझ के ये डाला हुआ है, और ये लास्ट इसके लिए रखा हुआ है कि आपकी मेंटली और बॉडी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ तो हम काम किस से करेंगे, बॉडी से करेंगे, ठीक है। और बॉडी जो अपना अच्छा होगा तो अपना क्या हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। जैसे कि फिजिकल हम अच्छे हैं, पुलिस में ज्वाइन करना है तो हमको फिजिकली अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही हमको कलेक्टर बनना है तो आपको मेंटल हेल्थ तो जरूरी है, उसके साथ फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है। ऐसे ही डिफेंस में जाना है तो आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आप मैंने थोड़ी बहुत छोटी टिप्स डाली हुई है कि भाई आपको टाइम पे सो जाना है, टाइमली 8 to 7 आवर्स अपने को नींद लेनी है, ठीक है।
आपको खाना भी हेल्दी खाना है, आपका डाइट प्लान भी एक बॉडी विटामिन आयरन जैसे रहते वो अपने बॉडी को डेली बेस पे जरूरत रहती है। ऐसे ही एवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। खास करके ये जो चीज है उसको अपने को मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि हम एक समय पे उसको छोड़ दें। शायद हम ले रहे होते हैं, कोई ऐसे तंबाकू लेते हैं, जैसे गुजरात में ज्यादातर तंबाकू और मावा खाते हैं, तो उसको भी हमको अवॉइड करना है कि आने वाले दिनों में मैं किस तरह से उसको मतलब अपनी हैबिट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और डेली जैसे रमेश सर ने बताया कि आप सुबह उठ के क्रिकेट खेलने जाते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, विटामिन डी आपकी बॉडी में काफी कुछ सपोर्ट करता है। विटामिन डी से दूसरे जो विटामिन होते हैं उसको भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। डेवलप योर रेगुलर रूटीन। सपोज आप जॉब पे भी लग जाते हो और प्रेशर वाला जॉब है या कोई भी जॉब है, लेकिन उसमें आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा कि आपकी क्या सुबह उठ के आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ भी सुबह उठ के आप करिए, ठीक है। और दूसरा चीज कि आपका क्या टाइमिंग है, बिफोर टाइम आप 10 मिनट्स अर्ली चलिए लाइफ में, तो ही आपको आगे बढ़ने का चांसेस मिल सकता है। और आप अभी क्या है कि देखिए मैं ये पॉइंट इसलिए रखा हुआ है, दूसरा चीज कि कोविड-19 की वजह से हम काफी प्रेशर में, काफी मेंटल मतलब डिस्टर्ब चल रहे हैं कि यार आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या होगा, क्यों होगा, पता नहीं। हम अपने आप को ही सवाल पूछते, बट ये सवाल हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी नियर एंड डियर फ्रेंड्स है या नियर एंड डियर से, उसको हम पूछना चाहिए कि भाई आने वाले दिनों में क्या होता है। उसमें क्या होता है कि उसने कोई स्टडी की हुई हो। और दूसरा चीज यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि स्किल जो है, स्किल अभी आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादातर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे किसी का कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश वीक है, तो उसको रीड करके या ट्रेनिंग उस टाइप की ऑनलाइन लेके आप कर सकते हो। दूसरा है कि आपका कोई ऐसा मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग में ऑटोकैड में काफी अभी फंक्शन नए आए हुए हैं, तो उसको भी आप अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज, और इफ रिक्वायर्ड लास्ट में जो है कि आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। अभी क्या होता है, काफी किसी की मेंटल हेल्थ या काफी बॉडी कहीं ऐसा लग रहा है कि यार चल रहा है चलेगा, कोई 1-2 गोली खा के मार्केट में लेके हम खा रहे हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग एंड रॉन्ग। आगे जाके आपको यही प्रॉब्लम होगा। अभी आप यंग है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा एज के बाद, जैसे 40-50 के बाद, आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी सारी वीकनेस कहाँ हो गई। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको फिजिकली और मेंटली हेल्थी जो भी होंगे उसको एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। थैंक यू टू कॉलेज मैनेजमेंट एंड स्पेशली नील जोशी सर। प्लीज रमेश सर। रमेश सर, हाँ अनम्यूट कर दो सर। ओके। Thank you, Dheeraj sir. You have rightly said. So I just want to add one more thing over there कि हमारा जो कैरियर पॉइंट होता है उसमें जनरली हम बोला जाता है 3 लेयर रखते हैं हम लोग, ठीक है। वन थिंग इज दैट कि मैं कैरियर अगर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ तो कहाँ से, अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो ज्वाइन दी स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सी स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या होता है कि वहां पे वन मैन आर्मी रहता है। सो वन हैज टू डू अ जॉब ऑफ फीटर ऑल्सो एंड वन हैज टू डू अ जॉब ऑफ मैनेजर ऑल्सो। सो अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करियर में अगर स्मॉल कंपनी ज्वाइन करेंगे, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो छोटा वाला कंपनी ही ज्वाइन करेंगे तो यू विल बी नो ईच एंड एवरीथिंग। बड़ी कंपनी में मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशलिस्ट बनेंगे कि मुझे हाइड्रोलिक्स देखना है तो सिर्फ हाइड्रोलिक्स ही देखूंगा मैं, ठीक है। अगर मुझे ये सेक्शन देखना है तो सिर्फ इतना वाला सेक्शन ही देखूंगा, वो लिमिटेड बन के रह जाता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करियर में ही अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी स्मॉल कंपनी में मिलती है जिसमें आपको सब कुछ देखना है, देन इट विल बी ग्रेट बेनिफिशियल टू योर करियर। सो इसमें 3 स्टेज रहते हैं कि आप स्टार्टिंग जब करते हैं उस टाइम पे स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज में ज्वाइन करिए,
देन आफ्टर आप जब ग्रोथ करना रहता है तब मिड स्केल ऑफ कंपनी, मिड साइज ऑफ कंपनी में ज्वाइन करिए। और जब स्टेबल रहना है, स्टेबल क्यों रहना होता है लाइफ में, क्योंकि वो उस टाइम पे एक एज हो जाती है, 40 अब हो जाता है आदमी, उसके बच्चे होते हैं, पढ़ाई करनी रहती है, फैमिली को स्टेबल करना रहता है, उसके बाद एक लार्ज स्केल ऑफ कंपनी लाइक रिलायंस, अदानी, अरविंद, लाइकवाइज L&T ऐसी। सो अगर आपको कुछ रियली सीखना है तो छोटी वाली कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी इनिशियली मिल जाती है तो दैट इज द बेस्ट अपन बेस्ट। ऐसा नहीं है कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये छोटी कंपनी है, मैं क्या ज्वाइन करूंगा, क्या मेरा करियर बनेगा, और वहां पे वन मैन आर्मी का काम रहता है। यू विल लर्न बाय प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग, पूरा का एंटायर प्रोसेस सीखने को मिलेगा। जबकि आप बड़े कंपनी में डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाता है, आई थिंक इट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग थिंग। अगर अपॉर्चुनिटी छोटा कंपनी में मिलता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग थिंग, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट आती है कोई कंपनियां, तो क्या क्या ध्यान रखना रहता है। सी एकेडमिक्स, आपका जो स्कोर कार्ड है वो तो है ही है, आपका पूरा का पूरा आपने अटैच किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ फ्लुएंट यू आर इन इंग्लिश। देखो आज इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इज अ डेफिनेशन ऑफ योर नॉलेज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर इट इज डेफिनेटली एडेड वैल्यू टू योर कैरियर, ठीक है। सो इंग्लिश एक सीख सकते हैं, तो अगर इस टाइम पे अगर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो ये ज्वाइन इट। मोर आई विल ऑल्सो IT स्किल्स। आज कंप्यूटर आना बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लोगों को आता ही है, खास करके आप ऑटोकेड है, 3D है, 4D है, मतलब यू आर वेल नोन ऑफ ऑल दिस इंजीनियरिंग थिंग्स, ठीक है। सो वो अगर कुछ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज, ठीक है। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रेजेंटेशन स्किल। सी आज क्या होता है, मेरे पास नॉलेज दुनिया भर का है मगर मैं बता ही नहीं पाता हूँ, सो दैट इज ऑल बी वेन इनटू द वेन ओनली, वो पूरा नाली में ही गया, ऐसा ही समझ लो। क्योंकि मैं अगर आपको बता ही नहीं पाऊंगा कि मुझे हाइड्रोलिक्स में कितना अच्छा काम आता है या क्या मैंने स्टडी किया है, वेदर दैट इज रियली यूजफुल टू कंपनी और नॉट, वो मैं अगर प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा तो वो कुछ काम का नहीं है। सो यू हैव टू बी अ प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आपने जो भी सीखा है या आप जो भी कर पाते हो, कर सकते हो, दैट यू हैव टू प्रेजेंट। सो दीज 3 थिंग्स, first is English, second is a computer, and third is a presentation. That is a must required and added advantage to the your career. ठीक है। Further, मैं शायद people would be aware of this. Resume जब आप लिखते हो ना, वहाँ पे आपका प्रोफेशनल फोटो और प्रोफेशनल मेल ID होना मैंडेटरी है। मेल ID कई बार क्या होता है, people are noting it while they are recruiting it, ठीक है। कहीं पे भी आप naukri.com पे भी डालते हो तो मेल ID जो है, आपका जो फोटो है, that should be a professional. These are the few tips which basically HR people or the technical who are the recruiter, they are basically looking at whether he is, उससे ऐसा नहीं है कि उससे कोई फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है कि वो how responsible, how disciplined, how serious the person is. नथिंग एल्स, उससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई ऐसा नहीं कि नॉलेज आपका है तो वो कोई छीन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। मोर ओवर आप लोगों ने शायद स्टडी किया होगा, इंजीनियर है तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बनते हैं, ठीक है। इंजीनियर है तो काफी कुछ बन भी सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप तो अनलिमिटेड है ही है, इंजीनियरिंग में भी आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है, सिविल किया है, उसमें भी आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली सर्विस तो है ही है, इंजीनियर आप हैं तो इंजीनियर है ही है। उसके अलावा आता है परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक कंपनी में। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू हैव विजिटेड एनी इंडस्ट्रीज और नॉट। हर अगर मान लीजिए कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट विच इज परचेजिंग और बाइंग द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड बाय दैट ऑपरेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, नट बोल्ट्स लेने रहते हैं, ठीक है। नट बोल्ट्स लेना है तो वो टेक्निकल पर्सन ही चाहिए परचेज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो फिर MBA वाला परचेज करके ले आएगा, फिर वो कितने डाया का होगा, कितना MM का होगा, और ये सब जो है उसके लिए वो वहां पे टेक्निकल बंदा ही बिठाते हैं। सो परचेज टेक्नो कॉमर्शियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर।
सेल्स रहता है। इफ यू आर इनटू द इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कंपनी है जो इंजीनियरिंग मशीन्स बनाती है, उसके लिए अगर सेल्स में बंदा चाहिए वो इंजीनियर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फिर वो जो एमबीए मार्केटिंग किया होता है वही जाता है, क्योंकि वो टेक्निकलिटी जो है ही विल मोर एलोबरेट। सो आपको ये जो है एमबीए अगर आप इसमें एडेड करते हैं तो सेल्स में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, उसमें भी वो टेक्नो चार्ट रहता है, चार्टर्ड इंजीनियर जिसको बोलते हैं, यू माइट हैव हर्ड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स आते हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन में। सिमिलरली फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी एक रहता है, यू ऑल वुड बी अवेयर ऑफ, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। उसमें भी अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया है तो उसमें अगर आपने एक डिप्लोमा इन सेफ्टी या डिप्लोमा इन फायर कर लेते हैं आप, तो दैट विल बी द एडेड एडवांटेज फॉर द फायर डिपार्टमेंट। काफी सारी कंपनियां रहती हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, मतलब इंजीनियर प्लस फायर एंड सेफ्टी का जिसने कोर्स किया है ओसास का, उसको वो सिलेक्ट करते हैं एज अ फायर ऑफिसर, एज अ सेफ्टी ऑफिसर। वो सब टेक्निकलिटी रहता है, क्योंकि उनको एनओसी देनी रहती है सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हर एक काम के लिए। यू माइट बी अवेयर और नॉट, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। आप इंजीनियर हैं तो सिर्फ इंजीनियर नहीं है, काफी सारे इंडस्ट्रीज में भी कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कैसा क्या कैरियर एज अप टू योर स्वॉट एनालिसिस आप आगे क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। धीरज सर, वुड यू लाइक टू टेल एनीथिंग और वी कैन हैंड ओवर दिस टू जोशी सर? यस, लास्ट ये बताना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड में हो, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, तो एटलीस्ट अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी युग है, ठीक है ना। तो आने वाले दिनों में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या आने वाली है या कुछ नया कुछ बन सकता है, तो उसके ऊपर खास करके आप उसको ध्यान दीजिए और उसके ऊपर रीडिंग रखिए, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसमें आप काफी कुछ मदद कर सकते हो। दूसरा चीज ये था कि जैसे हमने बात की कि कोई कंपनी बना रहे या कोई किसी का फादर का बिजनेस है, उसी में कोई ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है ना। तो आजकल क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट एज फार एज जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी आपको पर्सनल तौर पे आपको सपोर्ट करेगी। जैसे कि मैंने कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाया है जिससे काफी एनर्जी, काफी टाइम, काफी मैन, काफी हवर्स बच सकते हैं। तो उस जो मशीनरी है उसके ऊपर, जैसे कि पहले क्या था कि सब ऐसा सोचते थे कि यार मैं क्यों रिस्क लूं, मेरी कंपनी सही चल रही है तो मैं चलाऊंगा। लेकिन अभी सिनेरियो मार्केट में चेंज हो गया है। मेरी कंपनी, जैसे कि हमारी कंपनी पारेख है, तो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी शोध करने वाली कंपनी है या कोई बंदा है या कोई ग्रुप है, उसके ऊपर भी उसकी मनी लगाएगी और जो सम पार्ट होगा उससे बेनिफिट होगा। तो आने वाले दिनों में ये भी आपको एक ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। थैंक यू। Okay. So, Ramesh sir, do you want to do anything? No sir, that's all from my end. Question is there, if anything from the students or you, we are there. Okay, sure, sir. Actually, today we have arranged this webinar specially to motivate the students. Okay. So, sir ने बताया कि motivation is a very important thing. अगर आप motivated नहीं हो, SWOT भी सर ने आपको बताया, अगर आप डिफाइन नहीं हो अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है, आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, बस सर ने जो बताया इट्स ओके फाइन, बस उतना ही सिर्फ करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सो मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के साथ और हमारे जो डिग्रीज है उनके साथ भी। जस्ट एक ओकेजन है कि एक पर्सन था, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, कुछ ऐसे रीज़न आ गए कि उस रीज़न की वजह से उसका लॉस हो गया और वो रोड पे आ गया। बस गार्डन में बैठा है और गार्डन में बैठकर सोच रहा है कि अब क्या करूं। सामने से एक पर्सन आ गया, उसने बोला कि मैं आपने देख पा रहा हूँ कि आप अपना नया स्टार्टअप कर लोगे, आप में वो कैपेबिलिटी है। और उन्होंने चेक फाड़ कर दे दिया कि ये ले लो, 100 करोड़ का चेक मैं आपको दे रहा हूँ। फिर उस बंदे ने सोचा कि आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, आप मुझे क्यों 100 करोड़ रुपये दे रहे हो, क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, जो आपका जो पूरा रूल हो गया वो बिजनेस आप फिर से स्टार्ट कर पाओगे।
फिर उन्होंने सोचा कि अगर अननोन पर्सन मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है तो मैं अपने आप पे क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने वो चेक अपने जेब में डाल दिया। आफ्टर 5 years he really start his business and he was a great। उन्होंने सब अचीव कर लिया। फिर उसी गार्डन में जब मिला 5 साल के बाद, और जस्ट इमेजिनेशन 5 साल के बाद मिला, तब क्या हुआ कि वो पर्सन फिर से आया हुआ था। तो पीछे एक वान थी। वो वान किसकी थी कि वो मेड सेक्शन जो होता है, हम जो पागल लोग बोलते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, बोला वो तो सबको चेक बांटते फिरता है। तो रीजन क्या है कि उस इंसान को अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन एक पागल ने चेक दे दिया तो उसने पूरा बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया। बात है अपने आप पर भरोसा करना। सो जो हमने वेबिनार अरेंज किया है उसका रीजन वही है। धीरज सर आपको इंस्पायर कर रहे हैं, रमेश सर आपको बता रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है, जिससे हम अपना गोल डिसाइड करेंगे, अपने आप पे भरोसा करेंगे, एंड वी कैन गो अहेड विद द बेस्ट पोजिशन मोमेंट्स। ओके, so Ramesh sir and Dheeraj sir, on behalf of LDRP Mechanical Engineering Department, I really thankful to you and giving your valuable time and spending your time with our dear students.